Hello everyone. So we have been discussing nucleotide metabolism, and in that I have already covered de novo synthesis of pyrimidine nucleotides and salvage pathways. So the topics left for discussion are de novo synthesis of purine nucleotides, regulation of purine and pyrimidine nucleotide biosynthesis, then breakdown of nucleotides and nucleotide analogs. Okay, these are the topics which we have to discuss. So today I will try to cover these two topics: de novo synthesis of purine nucleotides and regulation of the purine pyrimidine biosynthesis. So let us start with de novo synthesis of purine nucleotides. And you know that in de novo synthesis of purine nucleotides, purine ring is basically formed in step-by-step manner on ribose 5-phosphate unit. Okay, so this is a structure of this is basically a skeleton, carbon skeleton of purine ring, and this is very important. This structure shows the source of different atoms of the ring. Okay, so the in purine ring the numbering start from this nitrogen. So, this is nitrogen number 1, this is 2, this is 3, this is 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Okay, so as you can see that nitrogen at first position comes from aspartate, carbon at second position comes from formate, nitrogen at third position and nitrogen at ninth position come from glutamine, carbon at fourth position, carbon at fifth position and nitrogen at seventh position come from glycine, carbon at sixth position come from carbon dioxide, carbon at eighth position come from formate. So this is a very important structure. Please memorize this. So let us start with the pathway as such. So in the pathway, this is the first committed step of the pathway where PRPP gets converted into phosphoribosylamine. Okay. So what is happening in this reaction? There is a displacement of phosphoribosyl group from PRPP with or by ammonia from glutamine. Okay. So and this reaction, so this is a displacement reaction. Pyrophosphoryl group is replaced by the ammonia group from glutamine. So फॉस्फोराइबोजल पायरोफॉस्फेट से क्या बनता है फॉस्फोराइबोजल अमीन बनता है ठीक है तो यहाँ पे पीपी ग्रुप निकल गया और ये NH2 ग्रुप यहाँ पे लग गया ठीक है so this reaction is a first committed step of the pathway. तो first committed step कौन सा होता है committed step होता है the step which is committed for a pathway. Once this step happens, the pathway moves in a forward direction and product is formed. Okay, and this reaction is irreversible reaction. And this particular reaction is catalyzed by enzyme glutamine phosphoribosyl amidotransferase, and this enzyme is also called glutamine PRPP amidotransferase. Okay, so this is the first reaction, and let us have a look on the enzyme. So the enzyme glutamine phosphoribosyl amidotransferase, it has two domains. The first domain is homologous to phosphoribosyl transferases of the salvage pathway. So as you remember, in salvage pathway, phosphoribosyl transferases, they carry out attachment of purine bases to the 5-phosphoribosyl unit. ठीक है तो ये कौन सा रिएक्शन कैरी आउट करते हैं एज यू रिमेम्बर जैसे एडेनिन प्लस PRPP गिव्स एडिनाइलेट प्लस PPI ठीक है तो सेम इसी तरह का रिएक्शन यहाँ पर भी हो रहा है यहाँ पर भी PPI जो पायरोफॉस्फोरिक ग्रुप है दैट इज रिमूव्ड दैट इज रिप्लेस्ड विद द अमाइनो ग्रुप और वहां पे जो PPI ग्रुप है दैट इज रिप्लेस्ड विद द प्यूरिन बेस ठीक है तो ये जो एक डोमेन है इसका दैट इज होमोलोगस टू द the same enzyme which catalyze reactions in salvage pathway phosphoribosyl transferases ठीक है और ये है when the second domain carry out hydrolysis of glutamine to produce ammonia. So second domain has a glutamine hydrolysis site, but this domain is distinct from that one in
CPS2. So CPS2 में जो ग्लूटामिन हाइड्रोलिसिस डोमेन है, that is different from this domain. Okay, so this is about the enzyme. Also, one more thing to add up, that this enzyme assumes an active configuration only on binding PRPP and glutamine, its substrate. ठीक है, तो ये जो एंजाइम है जब PRPP और ग्लूटामिन को बाइंड करेगा तभी ये एक्टिव होगा, अदरवाइज ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा. So this is a page from Stryer, and let us have a look on the other reactions of the pathway. So this is here it is written first reaction. इन्होंने पहला जो रिएक्शन है वो अलग से ऊपर बता दिया है, और अलग बाकी के जो रिएक्शंस हैं 6 रिएक्शंस वो ये अलग से यहाँ पे दिखाए हैं. ठीक है, तो जो पहला रिएक्शन है उसमें PRPP से फॉस्फोराइबोसिलामीन बना. ठीक है, सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन, द फर्स्ट कमिटेड स्टेप. अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट ग्लाइसिन इज कपल्ड टू द अमाइनो ग्रुप ऑफ द फॉस्फोराइबोसिलामीन. ठीक है, तो ये ग्लाइसिन है. ठीक है, दैट कपल्स टू द, ये पूरा का पूरा ग्लाइसिन मॉलिक्यूल है, दैट कपल्स टू द अमाइनो ग्रुप ऑफ द फॉस्फोराइबोसिलामीन. ठीक है, ये फर्स्ट रिएक्शन है. अब ये और इसमें ATP इज यूज्ड हियर. ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट रिएक्शन, द फॉर्माइल tetrahydrofolate. This is a formyl tetrahydrofolate, and you know this is a coenzyme which carries a formyl group. ये क्या करता है, it transfers its formyl group to the amino group of the glycine. Glycine है, इसका amino group है, and this tetrahydrofolate transfers the formyl group to the amino group of the glycine residue, forming formyl glycinamide ribonucleotide. ये फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, सिंपल है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, द इनर अमाइड ग्रुप. ये इनर अमाइड ग्रुप है, NHC डबल बॉन्ड 2. द इनर अमाइड ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू एमीडीन बाय एडिशन ऑफ ग्लूटामीन, by addition of ammonia from glutamine. ठीक है, so in this reaction ये जो inner amidine group है that is converted into amidine, the inner amide group. This is inner amide group that is converted into a amidine group, NC double bond NH group. ठीक है, so इसमें convert होता है by ammonia released from the glutamine. ठीक है, so in this reaction also ATP is used, hydrolyzed. So resulting intermediate is formyl glycinamidine ribonucleotide. तो ये था formyl glycinamide ribonucleotide, ये है formyl glycinamidine ribonucleotide. ठीक है, कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से बता सकूं इसे. तो उसके बाद क्या है नेक्स्ट रिएक्शन में, इन द नेक्स्ट रिएक्शन अब क्या है, ये इसकी साइक्लाइजेशन होगी. दिस विल फॉर्म अ इमिडाजोल रिंग. ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इमिडाजोल रिंग विल बी फॉर्म्ड. 5 एंड इमिडाजोल रिंग आपको पता है 5 मेंबर्ड रिंग जो है दैट इज फॉर्म्ड. सो इसमें क्या है, देयर इज अ इंट्रामोलिकुलर कपलिंग रिएक्शन. ये जो है इंट्रामोलिकुलर कपलिंग रिएक्शन है, इसमें तो ये दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा. ठीक है, सो इन दिस डिहाइड्रेशन हैपन. ठीक है, this ring undergoes dehydration and intramolecular coupling happens and imidazole ring is formed. This is called 5-amino imidazole ribonucleotide. ठीक है, so this is 5, ये 5th पोजीशन का कार्बन है ना, 5-amino imidazole ribonucleotide. तो सिंपल, काफी सिंपल वे में यहाँ पे दिया हुआ है. In this reaction also ATP is hydrolyzed. उसके बाद जो अगला रिएक्शन है उसमें बाइकार्बोनेट इज एडेड टू द एक्सोसाइक्लिक अमाइनो ग्रुप. ठीक है, ये एक्सोसाइक्लिक अमाइनो ग्रुप है इमिडाजोल रिंग का, ये दिस. तो बाइकार्बोनेट जो है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा और इस पे जाके अटैच हो जाएगा.
ठीक है, दिस बाइकार्बोनेट गैस अटैच टू द एक्सोसाइक्लिक अमाइनो ग्रुप। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, इसमें सबसे अच्छी बात इसमें ये दी हुई है कि इसमें कलर्स के साथ दिया हुआ है। जैसे ग्लाइसिन पिंक कलर का दिखाया है, तो इसमें ये सारे एटम्स ग्लाइसिन के हैं पिंक कलर के। ये ये ब्लू कलर में दिखाया है, तो ये ब्लू कलर की। तो ये कलर से जो दिखाया है ना, ये बहुत 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 बढ़िया कलर, बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन है, बहुत इजी वे में इसमें समझाया हुआ है। दैट्स व्हाई आई चूज दिस। ठीक है, ये स्ट्रायर का पेज है। तो इसमें ये बाइकार्बोनेट यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि this bicarbonate attached to the exocyclic imidazole amino group of the imidazole ring is then transferred to the carbon of the imidazole ring। ठीक है, ये यहाँ से ट्रांसफर हो गया, जो इमिडाजोल रिंग का जो कार्बन है उसके साथ ये अटैच हो जाता है बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, सो ये क्या, और ये स्पॉन्टेनियसली होता है, इसमें कोई एंजाइम वगैरह की या कुछ स्पेशल किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली ही ये जो कार्बन डाई CO2 ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ जाता है इस कार्बन पे। ठीक है, सो ये कौन सा कंपाउंड है, कार्बोक्सी अमाइनो इमिडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये कार्बोक्सी अमाइनो इमिडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या होता है, द इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट इज देन, ये जो इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट है, दिस कार्बोक्सिलेट, दिस इज देन डिस्प्लेस्ड बाय द अमाइनो ग्रुप ऑफ द एस्पार्टेट। अब यहाँ पे एस्पार्टेट आएगा। ठीक है, एस्पार्टेट जो है वो, एस्पार्टेट का जो अमाइनो ग्रुप है, दैट विल डिस्प्लेस दिस कार्बन, ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप उसको डिस्प्लेस करेगा और खुद यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो एस्पार्टेट ग्रुप gets attached to the imidazole ring। ठीक है, forming 5 amino imidazole। ठीक है, 5 amino imidazole, ये 5 है, 5 पोजीशन पे 5 amino imidazole। 4, ये 4th पोजीशन है, 4 n सक्सिनाइल कार्बोक्सामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो n सक्सिनाइल कार्बोक्सामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, तो ये कंपाउंड फॉर्म हुआ। तो ये फर्स्ट 6 रिएक्शंस हैं। और एक चीज इन्होंने यहाँ पे बताई है, दैट इन दिस पाथवे, इन दीज 6 रिएक्शंस, इन्होंने कहा है, हैव अ लुक ऑन दीज लाइंस। सो ईच स्टेप कंसिस्ट ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ अ कार्बन बाउंड ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ईच स्टेप कंसिस्ट ऑफ द activation of a carbon bound oxygen atom, typically a carbonyl oxygen atom, by phosphorylation, followed by the displacement of the phosphoryl group by ammonia or an amine group acting as a nucleophile। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी यहाँ पे इसमें जितने भी इंटरमीडिएट है, जहां पर भी ये कार्बन बाउंड ऑक्सीजन है, ठीक है, तो कार्बन बाउंड ऑक्सीजन दैट फर्स्ट गेट्स एक्टिवेटेड बाय फॉस्फोरिलेशन। तो पहले जो कार्बन बाउंड ऑक्सीजन है दैट विल अंडरगो फॉस्फोरिलेशन, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आता है। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, बेसिकली अमोनिया या अमीन ग्रुप है ज्यादातर। ठीक है, अमोनिया और अमीन ग्रुप है, दैट इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। वो आता है और इसको डिस्प्लेस करता है और खुद जुड़ जाता है, खुद बॉन्ड बना देता है। तो इस तरह के रिएक्शंस इस पाथवे में है। और यहाँ लिखा ईच स्टेप, यानी कि जितने भी स्टेप्स हैं यहाँ पे सब में ही ये रिएक्शन हो रहा है, फॉस्फोरिलेशन ऑफ द कार्बन बाउंड ऑक्सीजन एंड देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉस्फोरिल ग्रुप एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ग्रुप एंड अटैचमेंट ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बन। तो इस तरह के रिएक्शंस जो है ये पूरे आपको दिखेंगे इस पाथवे में। ठीक है, तो ये तो डिस्क्रिप्शन है पाथवे का। अच्छा, उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसमें ये 5 अमाइनो इमिडाजोल 4 n सक्सिनाइल कार्बोक्सामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, इसमें से फ्यूमेरेट निकल जाएगा और जो अमाइनो ग्रुप है वो उसके साथ जुड़ा रह जाएगा। सो फ्यूमेरेट, यहाँ से फ्यूमेरेट निकला एंड दिस फॉर्म्स 5 अमाइनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये 4 कार्बोक्सामाइड ग्रुप है, ये C डबल बॉन्ड O NH2।
सो दिस इज फॉर्म 2. उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि टेट्राहाइड्रोफोलेट कैरिंग फॉर्माइल ग्रुप comes and transfers its this group to यहाँ पे इस अमाइनो ग्रुप के साथ यहाँ पे इसका ट्रांसफर होता है. यहाँ पे दिस फॉर्माइल ग्रुप इज अटैच्ड टू दिस नाइट्रोजन फॉर्मिंग फॉर्मामिनोइमिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड. ठीक है, तो ये फॉर्मामिनो ग्रुप इज फॉर्म देयर. उसके बाद क्या है, दिस अंडरगोज डिहाइड्रेशन फॉर्मिंग अ रिंग, क्योंकि ये जो है जो दूसरी रिंग है पिरिमिडीन की 6 मेंबर्ड प्यूरिन की 6 मेंबर्ड रिंग, अब यहाँ पे इसका क्लोजर होगा इस रिएक्शन में. तो दिस कंपाउंड अंडर दिस इंटरमीडिएट अंडरगोज डिहाइड्रेशन एंड फॉर्मिंग अ इनोसेट. तो इस रिएक्शन में क्या है कि इनोसेट विल बी फॉर्म. तो इनोसेट इज द फर्स्ट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, तो यहाँ तक. सो इवन इन दिस पाथवे, ये आप लाइन्स इनको अब पढ़ो. Many of the intermediates in the de novo purine biosynthesis always degrade rapidly in water. So their instability in water suggests that the product of one enzyme must be channeled directly to the next enzyme along the pathway. ठीक है, तो ये जो लाइन्स हैं ये कह रही है कि ये जो इंटरमीडिएट्स हैं de novo purine biosynthesis के जो इंटरमीडिएट्स हैं, they rapidly degrade in water. ठीक है, तो हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स हैं और वाटर में रैपिडली डिग्रेड कर जाते हैं. देयर इंस्टेबिलिटी, ये जो इनकी इंस्टेबिलिटी है वाटर में, दैट सजेस्ट दैट प्रोडक्ट ऑफ वन एंजाइम मस्ट बी चैनल डायरेक्टली टू द नेक्स्ट एंजाइम अलोंग द पाथवे. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं कि मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस जो है वो यहाँ पे काम करते हैं इन कैरिंग आउट द पाथवे. ठीक है, क्योंकि मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस में जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक एफिशिएंट वे में इंटरमीडिएट जो है वो एक साइड से दूसरे साइड पे ट्रांसफर होते हैं और रिएक्शंस होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर भी ये, और लेनेंजर में भी इसके बारे में दिया है मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स के बारे में, कि उन्होंने कहा है कि ये एविडेंट है कि मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस इसमें भी, इस पाथवे में भी फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द पाथवे. ठीक है, लेकिन एक लाइन यहाँ पे इन्होंने ये लिखी है, yet these enzymes, at least in the absence of bound substrate and products, do not readily form complexes with one another. ये कह रहे हैं कि जब सबस्ट्रेट या इंटरमीडिएट जब बाउंड करते हैं, बाउंड होते हैं एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ, ठीक है, तभी ये एंजाइम जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं. अगर सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट अगर नहीं बाउंड करेंगे तो फिर ये मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस नहीं फॉर्म करेंगे. जब सबस्ट्रेट और इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट जो अगर बाउंड फॉर्म में रहेंगे इन एंजाइम के साथ, तभी ये आपस में एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था ना कि अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म लिंकेज और नॉन कोवलेंट रिवर्सिबल बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं. एक तरह का कंपार्टमेंट होता है जिसमें अंदर ही इंटरमीडिएट जो है वो मूव करते हैं थ्रू सबस्ट्रेट चैनलिंग. ठीक है, और बहुत ही एफिशिएंट वे में प्रोडक्ट फॉर्म होता है. ओके, सो यहाँ पर भी ऐसा है. और जब एक बार रिएक्शन हो जाता है, जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट साइड से रिलीज हो जाता है, तो उसके बाद ये जो यूनिट्स हैं ये डिसोसिएट हो जाते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट ये जो इनोसिनेट फॉर्म हुआ है आईएमपी, इससे आगे एडिनाइलेट और ग्वानाइलेट फॉर्म होते हैं इन टू रिएक्शंस. ठीक है, टू स्टेप्स. तो यहाँ पे क्या है, इनोसिनेट जो है दैट देखो, अगर स्ट्रक्चर देखो तो इनोसिनेट और एडिनाइलेट दोनों में क्या डिफरेंस है. यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ की जगह पे ये CNH2 ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप की जगह अमाइनो ग्रुप है. ठीक है, तो इसमें क्या है कि इनोसिनेट फर्स्ट देन रिएक्ट्स विद एस्पार्टेट. ठीक है, एस्पार्टेट जो है यहाँ पे इसके साथ ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा. ठीक है, डिस्प्लेसिंग ऑक्सीजन यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा और यहाँ पे एस्पार्टेट आके अटैच हो जाएगा. ठीक है, फॉर्मिंग एडिनाइलो सक्सिनेट. उसके बाद फिर ये जो फ्यूमरेट है इसमें से ये निकल जाएगा फॉर्मिंग एडिनाइलेट ANP. ठीक है, खास खास ध्यान देने वाली बात इस रिएक्शन में ये है कि यहाँ पे ATP की जगह पे GTP यूज हो रहा है. ठीक है, इन हियर GTP इज हाइड्रोलाइज्ड फॉर दिस रिएक्शन.
तो यहाँ पर भी सेम ही चीज हो रही है, जो C डबल बॉन्ड O है, ये पहले तो GTP इसको फॉस्फोरिलेट करेगा, ठीक है, उसके बाद फिर एस्पार्टेट का जो अमाइनो ग्रुप है दैट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो इस पे यहाँ पे अटैक करेगा, फॉस्फोरल ग्रुप निकल जाएगा और उसका जो अमाइनो ग्रुप है एस्पार्टेट का यहाँ पे आके जुड़ जाएगा फॉर्मिंग दिस कंपाउंड, ठीक है। सो ये एक तो ये रिएक्शन है। दूसरा है इनोसिनेट जो है दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू फॉर्म ज़ेंथाइलेट, देन ज़ेंथाइलेट reacts with ammonia which comes from glutamine to form guanylate, ठीक है। तो यहाँ जो ज़ेंथाइलेट का जो C डबल बॉन्ड O है दैट इज रिप्लेस्ड बाय द NH2 ग्रुप और यहाँ पे ATP इज हाइड्रोलाइज्ड। तो इसमें क्या है कि ATP जो है दैट इज जो ये AMP फॉर्म है, ATP इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू AMP प्लस PP है, और जो AMP है दैट इज बेसिकली दैट फॉर्म्स बॉन्ड विद द दिस कार्बोनिल ग्रुप, AMP जुड़ता है आके यहाँ पे, जैसे और जगह तो फॉस्फोरिलेशन होती है, फॉस्फोरल ग्रुप जुड़ता है, यहाँ पे AMP आके यहाँ पे जुड़ता है, ठीक है, एंड दिस guanylate इज फॉर्म्ड। तो ये आपकी डी नोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड जो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं रेगुलेशन के ऊपर। तो पहले देखते हैं रेगुलेशन ऑफ pyrimidine बायोसिंथेसिस। तो एज पर ये स्ट्रायर ही मैंने खोला हुआ है, तो एज पर स्ट्रायर pyridine biosynthesis is regulated by aspartate transcarbamylase, ठीक है। तो aspartate transcarbamylase जो है that carries out the reaction where aspartate combines with carbamyl phosphate to form carbamyl aspartate. So this is the first committed step of the pyrimidine biosynthesis pathway, और यहाँ पे CTP which is the product of the pathway blocks this enzyme, ठीक है। CTP जब वो बन जाएगा तो इस पाथवे की और जरूरत नहीं पड़ेगी। So biofeedback inhibition, so CTP would bind to the enzyme and block it. तो जो ATKase, ये जो aspartate transcarbamylase enzyme है, it has a regulatory site, कैटालिटिक साइट होती है और रेगुलेटरी साइट होती है। तो उसकी जो रेगुलेटरी साइट है उस पे ये CTP बाइंड करता है और उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी ATP जो है दैट एक्टिवेट्स एंजाइम। जब ATP की प्रेजेंस में जो है CTP कभी भी एंजाइम को बाइंड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ATP जो है वो इसको ATP कीप्स द एंजाइम एक्टिवेटेड, ठीक है। तो ये है। तो अब मार्क्स इसका मैंने निकाले ही नहीं भी, ओके। अच्छा, एक लाइन और स्ट्राइल में लिखी हुई थी कि कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज इज आल्सो अ साइट ऑफ फीडबैक इनहिबिशन इज बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज भी रेगुलेट होता है फॉर pyrimidine pathway, तो ये भी रेगुलेट होता है। दिस आल्सो इज अ साइट फॉर फीडबैक इनहिबिशन इन प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी, ठीक है। तो दिस इज अ पेज फ्रॉम मार्क्स बेसिक मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, और इन्होंने दिया है रेगुलेशन ऑफ डी नोवो pyrimidine सिंथेसिस। तो इन्होंने बोला है द रेगुलेटेड स्टेप ऑफ pyrimidine सिंथेसिस इन ह्यूमंस इज CPS2। ये कह रहे हैं कि ह्यूमंस के अंदर यानी हमारे अंदर CPS2 जो है दैट इज रेगुलेटेड, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में उन्होंने कहीं पर भी एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोमाइलेज का जिक्र नहीं किया। इन्होंने बोला है कि CPS2 जो है दैट इज रेगुलेटेड, the enzyme is inhibited by UTP and activated by PRPP, ठीक है। तो UTP जो है वो इनहिबिट करेगा, जैसे एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोमाइलेज को CTP इनहिबिट करता है और ATP एक्टिवेटेड रखता है, ऐसे ही इस एंजाइम को CPS2 को UTP इनएक्टिवेट करता है, इनहिबिट करता है, और PRPP एक्टिवेटेड रखता है। So thus a pyrimidine decrease in concentration, as pyrimidine decreases in concentration as indicated by UTP levels, CPS2 is activated by pyrimidines as activated and pyrimidines are synthesized, ठीक है। So the activity is also regulated by cell cycle, सेल साइकिल से भी एक्टिविटी रेगुलेट होती है। एज द सेल अप्रोचेस एस फेज, ठीक है, एज द सेल अप्रोचेस
As the cell approaches S phase, CPS2 becomes more sensitive to PRPP activation and less sensitive to UTP inhibition. ठीक है, तो S phase में क्या हो रहा है, बहुत सारा DNA बन रहा है, तो बहुत सारे इसमें न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, तो उसमें क्या है कि CPS2 जो है that becomes more sensitive to PRPP and less sensitive to UTP inhibition. ठीक है, in the end of the S phase, when no more DNA synthesis is happening and no more nucleotides are required, the inhibition of UTP is more pronounced and activation by PRPP is reduced. ठीक है, तो जो सेल साइकिल है, in this way that also regulate the activity of this enzyme and ये जो changes है, these changes in the allosteric properties of CPS2 are related to its phosphorylation state. हाँ, तो ये जो changes हैं in the allosteric properties of the CPS2, they are related to its phosphorylation state. ठीक है, तो phosphorylation of the enzyme at a specific site by MAP kinase leads to a more easily activated enzyme. यानी अगर एंजाइम की किसी स्पेसिफिक साइट पे अगर फॉस्फोरिलेशन होगी बाय मैप काइनेज, तो उससे जो एंजाइम है वो इजीली एक्टिवेट हो जाएगा. अगर फॉस्फोरिलेशन होगी, फॉस्फोरिलेशन एट द सेकंड साइट बाय साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज लीड्स टू अ मोर इजीली इनहिबिटेड एंजाइम. अगर एंजाइम की किसी साइट पे अगर फॉस्फोरिलेशन होगी बाय साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, दैट वुड लीड टू इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम. ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ मार्क्स बेसिक मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में दिया था, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपके साथ ये शेयर किया है. तो अब देखते हैं प्यूरिन रेगुलेशन ऑफ प्यूरिन बायोसिंथेसिस, नोवो प्यूरिन बायोसिंथेसिस. तो ये दिस आई हैव टेकन फ्रॉम मार्क्स, अगेन फ्रॉम मार्क्स बेसिक मेडिकल बायोकेमिस्ट्री. मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक डायग्राम के फॉर्म में बहुत ही इजी वे में ये रेगुलेशन को दिखाया है. दैट्स व्हाई आई लाइक्ड इट, सो आई एम शेयरिंग इट विद यू. तो यहाँ पे क्या है कि जो रेगुलेशन होती है वो 4 पॉइंट्स में होती है. 4 एंजाइम्स आर रेगुलेटेड इन द पाथवे. ठीक है, पूरी पाथवे है स्टार्टिंग फ्रॉम द राइबोस 5 फॉस्फेट. राइबोस 5 फॉस्फेट से बनता है पीआरपीपी. ये कमिटेड स्टेप नहीं है, बिकॉज ये जो रिएक्शन है ये बहुत और मतलब बहुत सारी पाथवेज में इन्वॉल्व रहता है. सो दिस इज नॉट अ कमिटेड स्टेप फॉर द पाथवे. दिस इज द कमिटेड स्टेप ऑफ द पाथवे, फॉर्मेशन ऑफ पीआरपीपी, कन्वर्जन ऑफ पीआरपीपी टू 5 फॉस्फोराइबोसोल. ठीक है, सो ये जो मेन एंजाइम है जो आपको स्ट्रायर और लेनिंगर सब में मिलेगा कि दिस एंजाइम इज रेगुलेटेड. सो ग्लूटामीन फॉस्फोरिल अमाइडो ट्रांसफरेज जो है दैट इज रेगुलेटेड. इसमें क्या है कि दिस इज रेगुलेटेड बाय ऑल द 3 न्यूक्लियोटाइड्स, तीनों न्यूक्लियोटाइड जीएमपी, जीडीपी, जीटीपी, एएमपी, एडीपी, एटीपी. ये सारे के सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये सारे के सारे दे कैन बाइंड, yeah, all 3 of them they can bind to the enzyme and deactivate the enzyme. ठीक है, इसके एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करेंगे और उसको डीएक्टिवेट करेंगे. तीनों में as you can see तीनों के तीनों दिखाया है इसे. ठीक है, इसको डीएक्टिवेट करते हैं. उसके अलावा जीडीपी एंड एडीपी they can bind and deactivate PRPP synthetase. ठीक है, तो PRPP synthetase जो है that is deactivated by GDP and ADP. ठीक है, नॉट एएमपी और एटीपी, जीडीपी एंड एटीपी. उसके अलावा दीज टू एंजाइम्स, आईएमपी के बाद जो एक्सएमपी बनता है ज़ेंथाइलेट, तो एंजाइम व्हिच कैरीज आउट दिस रिएक्शंस आईएमपी डिहाइड्रोजनेज, सो दैट इज नेगेटिवली रेगुलेटेड बाय जीएमपी. जीएमपी जो इसका प्रोडक्ट है, एक्सएमसी से जीएमपी बनेगा. जीएमपी जो है वो इसको बाइंड करके डीएक्टिवेट करेगा दिस एंजाइम, सो इट विल इनहिबिट दिस स्टेप. This step won't happen. Likewise, AMP would bind to adenylosuccinate synthetase and inactivate this enzyme. ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं where the de novo purine nucleotide biosynthesis pathway is regulated. ठीक है, if you look on this, ये जो लिखा है यहाँ पे कैप्शन, इसमें है कि ग्लूटामीन फॉस्फोराइबोसल अमाइडो ट्रांसफरेज कंटेन्स एडेनिन न्यूक्लियोटाइड एंड ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट्स, यानी कि मोनोफॉस्फेट्स. यानी कि ये जो एंजाइम है इसमें
एडेनिन मोनोफॉस्फेट और ग्वानिन मोनोफॉस्फेट बाइंडिंग साइट्स होती हैं, लेकिन इसमें डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट भी बाइंड कर सकते हैं और एंजाइम को इनहिबिट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेक डाउन ऑफ द प्यूरिन pyrimidine nucleotides and nucleotide analogs. Okay, so have a good day. Thank you. Bye bye.